Good morning, class 6. How are you? Each one of you doing well. I am too doing well. Well, today I have taken up a beautiful poem written by Rabindranath Tagore. It is about the wish of a child. See, when somewhere at that age group, somewhere 10, 11 or 9, you feel like your mom or your father scolds you at every step. You want to do this, but there are many don'ts and do's for you. There is a whole list of do's and don'ts. But that is such a age that you want to go according to your wish. If a child wishes to play, he or she just wants to continue. And this is what has been nicely written by the great author Rabindranath Tagore. He, in the first stanza, he beautifully shows how a child wishes to be a hawker, then the child wishes to be a gardener, and then the child wishes to be a watchman. And he wants to be left free, like the watchman, the gardener, or the hawker. That is what this poem is all about. Let's read out the first stanza. Just have a look at this child. While going to school, he is looking at a hawker who is crying bangles, bangles. And now you can see in this picture the child through an open gate. While coming back from the school, he sees a gardener and then he wants to be a gardener. So the first stanza goes like this. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying, bangles, crystal bangles. There is nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go. No time when he must come home. I wish I were a hawker spending my day in road crying bangles, crystal bangles. So, in the first stanza, when the gong sounds 10, the child is going to school early in the morning, and on the road he sees a hawker who is crying bangles, bangles, he is selling bangles, and the child thinks this life is better than my life, because I am being scolded, I am being checked, I am being stopped at every step by my parents or by the elders. अरे भैया, आपके मम्मी पापा आपको हर स्टेप पे रोकते हैं ना, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो. बच्चा बड़ा परेशान है इस बात से. बच्चा सोचता है ये अच्छा है, इसे ना कोई ये कहने वाला जल्दी करो, इसे ना कोई ये कहने वाला कि इस रोड पे मत जाना, इसे ना कोई ये कहने वाला कि इधर उस जगह पे मत जाओ, या अब टाइम हो गया चलो घर जाओ. तो इस तरह से बच्चा हॉकर ही बनना चाहता है पहले स्टेंजा में. डू यू अंडरस्टैंड? इन द सेकंड स्टेंजा, when at 4 in the afternoon the school child comes back from the school, he sees through the gate of that house the gardener digging the ground. गार्डनर को वो देखता है गेट से, और फिर वो सोचता है, देखिए
वो कैसे जब चाहे तब अपने स्पेड को चलाता है, जैसे चाहे मिट्टी को कुरेदता है, चाहे तो कपड़े गंदे हो जाएं, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। और फिर उसे याद आती है कि मुझे तो हर स्टेप पे रोका टोका जाता है। बच्चे को अच्छा लगता है स्वच्छंद रहना, आज़ाद रहना, उसे कोई रोकने वाला ना हो। विशेषकर कृष्णा, अगर मेरी बात सुन रहे हो घर पे, तो 9, 10, 11 की साल में यही तो होता है। आपको अच्छा लगता होगा ना सर डांटे ना मम्मी पापा डांटे। और केवल कृष्णा को क्यों कहें, वो छोटी छोटी 2 चुलबुली सी लड़कियां और वो 3-4 बच्चे और जो शरारत करते रहते हैं। आप यही तो चाहते होगे, ये भी कोई जिंदगी है? सब बड़े हमें रोकते रहते हैं। अरे जब हमारा मन होगा कपड़े गंदे करेंगे, जब हमारा मन होगा धूप में, मम्मी बोलती है धूप में मत रहो, छाया में आ जाओ, ये भी कोई बात है? ऐसा सोचते हैं बच्चे। स्कूल से वापस आते समय जब वो देखता है एक गार्डनर को गार्डनिंग करते हुए, तो वो बनना चाहता है गार्डनर। इन द थर्ड स्टेंजा, when it is evening time, when it gets darker, then the child, through the open window, he sees the watchman who is walking up and down. Have you seen the watchman? Do you know the duties of a watchman? Well, the child also sees the watchman, and see, the description is the lane is dark and lonely. भाई रात के अंधेरे में तो सड़क अकेलापन हो जाता। और फिर ये उन दिनों की बात है जब लाइट नहीं हुआ करती, सड़क पे भी चौराहे पे एक लैंप जला करता बस, और चौकीदार साहब लांटन लेके घूमते थे। ये उस समय की बात है। तो अंधेरा देखता है बच्चा विंडो से बाहर, एंड ही सीज द स्ट्रीट लैंप स्टैंड्स लाइक अ जायंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड। और फिर द चाइल्ड वांट्स टू बिकम द वॉचमैन। क्यों? क्योंकि वॉचमैन को कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ तो घर में मम्मी बोलती है 10 बज गए सो जाओ, लेकिन वॉचमैन चाहे तो पूरी रात जगता है और वो सोता नहीं है। बच्चे को ये पसंद आता है, बच्चे को रोकना टोकना पसंद नहीं आता। इसीलिए पेरेंट्स, दिस इज हाई टाइम, वी मस्ट टॉक टू द किड्स एंड नॉट स्कोल्ड देम। अच्छा 6 वाले बच्चे बताओ, सर कभी नहीं डांटते ना? प्यार से पढ़ाते हैं, प्यार करते हैं सर? ओके। तो आज हमने पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट कर ली है कि वो बच्चों को डांटेंगे नहीं और बच्चों के विश पूछेंगे। तो ये बच्चा सुबह स्कूल जाते समय बनना चाहता था हॉकर, स्कूल से वापस आते समय बनना चाहता था गार्डनर, क्योंकि उसने गार्डनर को देखा। और इवनिंग में जब अंधेरा हो गया तो घर की विंडो से उसने देखा वॉचमैन को, तो बच्चे को वॉचमैन की ज़िंदगी अच्छी लगी। अब आप ऐसा कीजिए, 2-2 का ग्रुप बना लीजिए। चाचा ताऊ का कोई बेटा बेटी हो आपके पड़ोस में, उसे बुला लो। बी इन अ ग्रुप ऑफ 2s एंड नाउ यू विल हैव टू आंसर माई क्वेश्चन। देखो भाई, दोनों डिस्कस कर लो, जल्दी इकट्ठे हो जाओ। और मैं आपको पहला क्वेश्चन भेज रहा हूँ। आप बताइए, हु इज द स्पीकर इन द पोएम? Yes, you're right. A school child. A school child is the speaker. See, the poet Rabindranath Tagore here assumes, goes back to his childhood. He becomes a school child, right? So school child is the speaker. अच्छा, क्या आप मेरे क्वेश्चन का ये आंसर दोनों मिलकर बताइए। आपके साथ कौन है, भैया या दीदी है? जो भी हो, दोनों डिस्कस करके। अच्छा, 2 दोस्त इकट्ठे हो गए हो, पड़ोस पड़ोस में रहते हो? हाँ, हो सकते हो, जल्दी बुला लिया है तो अगर दोस्त। और फिर डिस्कस करके अब आप ये बताइए कि व्हाट वेसेस डज द चाइल्ड इन द पोएम मेक? 3 वेसेस। यस, यू आर राइट। और वो क्या क्या है? हाँ, मुझे सुनाई दे रहा, आपके घर से आवाज आ रही है यहाँ पे। हाँ, पहले वो बनना चाहता है हॉकर, यस। फिर वो बनना चाहता है
यू आर एग्जैक्टली राइट, गार्डनर। और फिर वो बनना चाहता है, हाँ, वॉचमैन। बिल्कुल सही है, मैं आपके घर से भी आवाज सुन सकता हूँ। देखिए हमारा आपका रिलेशन कितना अच्छा है ना गुरु शिष्य का। मुझे घर से पता चल रहा आप क्या कहना चाहते हो। और भाई अब मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ। इस पोएम के बाद वर्किंग एक्सरसाइज जितनी है वो पूरी करनी है, और खास कर बच्चों को एक लिस्ट बना के मेरे पास भेजनी है, जिसमें आपको एक तरफ लिखना है जब आप घर आते हैं तो फिर क्या क्या एक बच्चे को क्या क्या काम करने चाहिए, वो सारे एक साइड में। मम्मी ने बताया होगा ना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। और एक बच्चे को क्या क्या नहीं करना चाहिए, एक साइड में लिस्ट बनाइए डूज, दूसरी तरफ डोंट। डूज डोंट, मेक अ लिस्ट, send it to me at the earliest, and the best list will get a prize. The prize will be a toffee. Good day, thank you.